طیارے کا حادثہ، تحقیقاتی رپورٹ میں کپتان اور ایئر ٹریفک کنٹرولر ذمہ دار قرار۔ وزیر ہوابازی نے رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی۔ کپتان نے لینڈنگ سے 10 ناٹیکل مائل پر ہدایت نظر انداز کی۔ لینڈنگ گیئر کھولنا بھی بھول گیا، دونوں انجن رن وے پر ٹکرائے۔ پائلٹ نے دوبارہ لینڈنگ کے وقت بتایا، انجن کام کرنا چھوڑ گئے۔ 92 نیوز رپورٹ میں سامنے آنے والے حقائق کے متعلق کئی روز پہلے ہی بتا چکا۔ برطانیہ میں شہید بے نظیر بھٹو کی 67ویں سالگرہ پر تقریبات۔ لندن میں ہونے والی تقریب میں پیپلز پارٹی برطانیہ کے عہدیدار اور کارکن بڑی تعداد میں شریک۔ دختر مشرق کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر انٹرنیشنل ورچوئل کانفرنس۔ پیپلز پارٹی رہنما اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کے علاوہ پاکستان، آزاد کشمیر اور دنیا بھر سے پیپلز پارٹی کے رہنما شریک۔ بی بی کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ جائے وقوع پر پاکستانی کمیونٹی رہنماؤں کی تعزیتی تقریب۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مرنے والوں کے ورثاء کے ساتھ کھڑے ہیں، مقررین کا خطاب۔ لاک ڈاؤن نرم ہوتے ہی اوورسیز پاکستانیوں نے سماجی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ برمنگھم میں اوورسیز پاکستانیوں کی حکومتی گائیڈ لائن کے مطابق باربیکیو پارٹی شیر و سخن نے محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اسکول کیچ اپ پروگرام کے تحت طلبہ کے لیے 1 ارب پاؤنڈ کے اضافی فنڈز کا اعلان کر دیا۔ لاک ڈاؤن سے طلبہ کے تعلیمی نقصان کو پورا کیا جائے گا۔ دنیا بھر میں آن لائن کاروبار اور ورچوئل میٹنگ کے رجحان میں غیر معمولی اضافہ۔ آن لائن فراڈیے اور ہیکرز بھی میدان میں آ گئے۔ برطانیہ اور یورپ کی کئی کمپنیز ہیکرز اور سائبر کرمنلز کے ہاتھوں پریشان، لاکھوں پاؤنڈز تاوان ادا کرنے پر مجبور۔ سعودی عرب میں آب زمزم کی فراہمی روک دی گئی۔ کنگ عبداللہ پروجیکٹ کی انتظامیہ کے مطابق فیصلہ کورونا سے بچاؤ کے پیش نظر کیا گیا۔ مکہ مکرمہ سمیت دیگر علاقوں میں آب زمزم کی سپلائی تا حکم ثانی بند رہے گی۔ اور الوداع لاک ڈاؤن، فرانس میں سینما گھر بھی کھل گئے۔ فرانس میں سینما گھروں کی رونقیں 3 ماہ کے وقفے کے بعد بحال ہوئیں۔ تفریح کو ترس شہری فلم بینی کے لیے پہنچ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری، میں ہوں حمزہ تارڑ اور میں ہوں رافع امان۔ ناظرین، کراچی میں PIA کے طیارے کو پیش آنے والے حادثے کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے۔ 24 صفحات پر مشتمل اس تحقیقاتی رپورٹ میں طیارے کے کپتان اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کو حادثے کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور نے تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کر دی، جس میں کہا گیا ہے کہ کپتان نے نہ صرف ہدایات کو نظر انداز کیا بلکہ لینڈنگ گیئر کھولنا ہی بھول گیا۔ وزیر ہوابازی نے قومی اسمبلی میں پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا، جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا۔ تحقیقات ہو چکی ہیں، بدھ کو رپورٹ ایوان میں پیش کر دی جائے گی۔ طیارہ حادثے کی رپورٹ میں جن وجوہات کا ذکر کیا گیا ہے، 92 نیوز ان محرکات کی نشاندہی 23 مئی کو ہی کر چکا ہے۔ کراچی طیارہ حادثہ میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ لینڈنگ سے پہلے جہاز کی مطلوبہ رفتار اور بلندی زیادہ تھی۔ 92 نیوز نے چاند رات کو طیارہ حادثے کے محرکات سے پردہ اٹھایا۔ کراچی طیارہ حادثے میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ لینڈنگ سے پہلے جہاز کی مطلوبہ رفتار اور بلندی زیادہ تھی۔
2 बार की याद दहानी के बाद भी पायलट जहाज को मतलूबा बुलंदी और रफ्तार पर नहीं ला सका। तहकीकाती रिपोर्ट में भी 92 न्यूज की खबर दुरुस्त साबित हो गई। तैयारे को हादसा इंजन रनवे से टकराने के बायस पेश आया। कराची में PIA तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने वजीर आजम को पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि तैयारे का कप्तान और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हादसे के जिम्मेदार हैं। लैंडिंग से कबल जहाज की ऊंचाई 1800 फीट होना चाहिए थी, लेकिन कप्तान तैयारे को 3000 फीट ऊंचाई पर उड़ा रहा था। कप्तान ने कहा वो ऊंचाई और स्पीड को कंट्रोल कर लेगा, ताहम ऐसा नहीं कर सका। लैंडिंग गियर खोलना ही भूल गया। जहाज के दोनों इंजन 3 बार रनवे पर टकराए, जिससे चिंगारियां उठी तो पायलट ने दोबारा टेक ऑफ कर लिया। पायलट ने दोबारा लैंडिंग के वक्त बताया इंजन काम करना छोड़ गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने रनवे से टकराने के बावजूद तैयारे को ना रोका। रिपोर्ट में कहा गया है कि कप्तान ने लैंडिंग से 10 नॉटिकल माइल्स पर दी गई हिदायत को नजरअंदाज किया। रिपोर्ट में फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी शामिल है। एयरबस कंपनी की तहकीकाती टीम का दौरा भी रिपोर्ट का हिस्सा है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने कौमी असेंबली में कहा, तैयारा हादसे की रिपोर्ट वजीर आजम से डिस्कस कर चुका हूँ। 10 साल के दौरान होने वाले तमाम तैयारा हादसात की रिपोर्ट बुध को ऐवान में पेश कर देंगे। रिपोर्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मिल चुकी है। आज हमने प्राइम मिनिस्टर से भी डिस्कस कर लिया है, तो उसके लिए मैं इस मौजूद ईवान को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि जो कमिटमेंट थी इंशाअल्लाह ताला वो पूरी करनी है। रिपोर्ट आ गई है, लेकिन और भी रिपोर्ट्स हैं, इन सारों को इकट्ठा करके टेंटिवली हम बुध को इंशाअल्लाह ताला ये रिपोर्ट सबमिट कर दें। ईद उल फितर से 2 रोज कबल जुमातुल विदा पर कराची एयरपोर्ट के करीब पेश आने वाले तैयारा हादसे में 97 अफराद शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए थे। तहकीकात के लिए फ्रांसीसी एयरबस कंपनी की टीम ने भी कराची का दौरा किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तानी कौम चंदा देने वाली कौमों में सबसे आगे है। 30 साल में सबसे ज़्यादा फंड उन्होंने इकट्ठा किया। सुबह पूछ लेते तो कभी ऐसा लॉकडाउन ना करने देता। अगला महीना मुश्किल है, स्मार्ट लॉकडाउन करना है। पहले से बीमार अफराद को कोरोना से बचा लिया तो सूरत हाल ख़राब नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर लॉकडाउन पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। कहते हैं यूरोप को देखकर सूबों में लॉकडाउन कर दिया गया। अगर उनसे पूछा जाता तो कभी ऐसा लॉकडाउन ना करने देते। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, ये लॉकडाउन ने जो सिचुएशन क्रिएट की है, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। मेरे से अगर वो पूछ लेते सूबे तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता। वज़ीर आज़म ने कहा, हमारे मुल्क में खैरात देने का जज्बा है। 30 साल में सबसे ज्यादा फंड मैंने इकट्ठा किया। जलजला आया तो सब लोग चंदा देने बालाकोट जा रहे थे। सैलाबी सूरत हाल में भी यही हुआ। पाकिस्तान की कौम का जो जज्बा है पैसा देने का, शायद कोई भी नहीं इसको पूरी तरह समझता जो मैं समझता हूँ। 30 साल में किसी ने इतना पैसा पाकिस्तान में इकट्ठा नहीं किया जो मैंने किया। 3 मील का ट्रैफिक जैम था बालाकोट। 3 मील तक लोग गाड़ियों में सामान लेके जा रहे थे देने के लिए। ये एग्जैक्टली यही चीज हुई फ्लड्स के अंदर कि एक तरफ फ्लड्स में सारे इतना सामान लोगों को दे दिया कि वो बेचना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म का कहना था, कैश प्रोग्राम ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया। मुस्तहकीन में पैसे की तकसीम के लिए लाड़काना गया तो देखा कोई तरखान है, कोई दर्जी। लाड़काना में 20% छाबड़ी वाले थे। समझ नहीं आई छाबड़ी वालों को क्यों बंद किया। मैं भी अभी लाड़काना गया पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने देखने के लिए, और उधर मैंने यही देखा कि वो बेचारे कोई तरखान है, कोई दर्जी है, कोई और कई मुझे अफसोस हुआ कि लड़काने में कोई उसमें से 20% छाबड़ी वाले थे। तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि छाबड़ी वालों को क्यों बंद कर दिया हमने। कोरोना से मुतालिक वज़रा के मुतज़ाद बयानात पर वज़ीर आज़म बरहम हुए और बयानबाजी से रोक दिया और कहा, अरकान असेंबली पनाहगाहों में गरीब के साथ खाना खाएं। अगला महीना मुश्किल है। बीमार अफराद को कोरोना से बचा लिया तो सूरत हाल खराब नहीं होगी। कौमी असेंबली के इजलास में पीपल्स पार्टी के रुकन अब्दुल कादिर पटेल ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहते हैं वज़ीर आज़म हर मामले में चंदा मांगने लगते हैं। जनाब यारी शुरू कहां से हुए? चंदे से। वो जी पार्टी बनानी, अस्पताल बनाना है, चंदा दो। पार्टी बनानी है, चंदा दो। जलसा करना है, चंदा दो। धरना देना है, चंदा दो। अब हुकूमत मिल गई है, चलानी है, चंदा दो। डैम बनाना है, चंदा दो।
कोरोना आ गया है, कहता है चंदा दो। वो खुदा की कसम सारी जिंदगी ईदी को लोगों ने पैसे दिए, इसने उससे भी चंदा ले लिया, ऐसा जालिम आदमी है। मुल्क भर के 549 इलाकों में लॉकडाउन जारी है, जबकि लाहौर की मजीद 8 इलाकों में सख्त लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, DHA, गुलशन रावी, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, अंदरून शहर, वॉल्ड सिटी मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सूबों के 549 इलाकों में लॉकडाउन जारी। लॉकडाउन वाले इलाकों की आबादी 90,93,818 है। सिर्फ सूबा पंजाब में 183 जगहों पर लॉकडाउन किया जा रहा है। सूबा सिंध में 68 मकामात, KP में 232 मकामात, आज़ाद कश्मीर में 40, गिलगित बल्तिस्तान में 16, इस्लामाबाद में 10 मकामात पर आमदोरफ्त बंद है। सिर्फ जरूरी अशिया वाली दुकानें ही खुली हैं। लाहौर के 21 इलाकों के 61 गलियों और ब्लॉक्स के बाद 8 मजीद इलाके मुकम्मल लॉकडाउन करने का फैसला कर लिया गया है। इन इलाकों में 96,229 घर, 2,33,000 खानदान, जबकि 10,69,000 आबादी रिहाइश पजीर है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग, मॉडल टाउन, DHA, गुलशन रावी, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, अंदरून शहर, वॉल सिटी को कोरोना के केसेस बरामद होने पर मुकम्मल बंद करने पर इत्तफाक राय हो गया। ताहम अकबरी मंडी और शाह आलम मार्केट खुली रहेगी। मुनाफाखोरों ने कोरोना मरीजों के लिए सांस लेना भी मुश्किल बना दिया। मुल्क भर में ऑक्सीजन सिलेंडर नायाब, 7 से 8 हजार में मिलने वाला सिलेंडर 25,000 रुपए का हो गया। रिफिलिंग के नर्ख भी कई गुना बढ़ गए। मुनाफाखोरों ने कोरोना को कारोबार बना लिया। मरीजों की सांस रोकने पर उतर आए। लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स का बहरान पैदा हो गया। 7 से 8 हजार वाला ऑक्सीजन सिलेंडर 25,000 तक पहुंच गया। अदाकार फखर आलम ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मामले पर अफसोस का इजहार किया। प्राइस रेगुलेट करना किसका काम है पाकिस्तान में? हम लोगों को, आप लोगों ने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। कभी कोई हमारा मुंह कर देता है, वो जी 18वीं तरमीम है, ये तो अब उनका मसला है, उनसे सुबह से जाके पूछे। कभी वो कहते हैं जी वो तो हमें जो है वफाक ने पैसे नहीं दिए तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। अल्लाह रसूल का वास्ता है, आप सबको खुदा का वास्ता है, ये जो सर्कस लगाई हुई है, ये जो मजाक आप लोग कर रहे हैं कौम के साथ, इसको खत्म कीजिए और संजीदगी से अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। पेशावर में ऑक्सीजन बेचने वालों ने मौत के सौदागरों का रूप धार लिया। ऑक्सीजन सिलेंडर, किट और रिफिलिंग की कीमतें इस कदर बढ़ गईं कि गरीब के लिए मसनूई सांस लेना मुश्किल हो गया। फैसलाबाद में बेलगाम ऑक्सीजन माफिया कोरोना मरीजों की सांसों से खिलवाड़ करने लगा। 200 PSI प्रेशर वाले सिलेंडर की रिफिलिंग का रेट 2 रोज में 1500 से बढ़कर 2000 तक कर दिया गया, जबकि वबा से पहले रेट सिर्फ 600 रुपए था। शहरी हलकों का कहना है कि हुकूमत ऑक्सीजन सिलेंडर्स और रिफिलिंग की बढ़ती हुई कीमतों पर कंट्रोल करे और मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन ले, ताकि मसनूई तनफ्फुस पर जाने वाले मरीजों को सहूलत मिल सके। कोरोना से अमवात और केसेस में निस्बतन कमी रिकॉर्ड की गई। एक दिन में मजीद 89 अफराद जाँ बहक, जबकि 4,471 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। अब तक 71,458 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त देकर जिंदगी की राह पर गामजन हो चुके हैं। कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 4,471 अफराद मुतासर हो गए। अब तक केसेस की मजमूई तादाद 1,81,088 हो चुकी है। सिंध में केसेस 69,628, पंजाब में 66,943, खैबर पख्तूनख्वा में 21,997, बलूचिस्तान में 9,475, इस्लामाबाद में 10,912, गिलगित बल्तिस्तान में 1,288 और आज़ाद कश्मीर में 845 हो गए। कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 89 अफराद दम तोड़ गए, जिसके बाद
अमवात की मजमूई तादाद 3590 हो चुकी है। पंजाब में अमवात की तादाद 1435, सिंध में 1089, खैबर पख्तूनख्वा में 821, बलूचिस्तान में 102, इस्लामाबाद में 101, गिलगित बल्तिस्तान में 22 और आज़ाद कश्मीर में 20 अमवात रिकॉर्ड की गयी। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 30,520 कोरोना के टेस्ट किए गए। अब तक 11,02,162 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में 810 हॉस्पिटल्स में कोरोना के 6,230 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना के 71,458 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। बुलेटिन में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया ने साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 67वीं सालगिरह के मौके पर इंटरनेशनल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी रहनुमा और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के अलावा पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़यादत समेत दुनिया भर से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर शहीद बीबी की सालगिरह का केक भी काटा गया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी बरतानिया के ज़ेरे एहतमाम साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह लंदन में मनाई गई, जिसमें पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और दीगर इलाकों से सीनियर रहनुमाओं ने ऑनलाइन शिरकत की और शहीद बीबी को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। ऑनलाइन मीटिंग में आगा तनवीर और अंबर एजाज ने मुंतज़िम के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस मौका पर खिताब करते हुए डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो को उनकी सालगिरह पर ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। to her party, with her commitment to Pakistan, with her commitment to democracy. Or, you know, by seeing her, I was convinced that I should join her and I should be a part of. और मुझे बहुत सारी बातें मैं करना चाहता हूँ। मुझे उन्होंने 2002 में कन्विंस किया। उस वक्त वो एग्जाइल में थी और मुझे कह रही थी कि सलीम, यू शुड जॉइन द पार्टी एंड यू शुड कम इन द पार्लियामेंट। सलीम मांडवीवाला का कहना था कि शहीद बेनज़ीर इस खित्ते की अजीम तरीन रहनुमा थी, जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम के हुकूक की बहाली के लिए जिद्दोजहद की और कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की और आखिरकार अपनी जान की कुर्बानी पेश की। पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर फर्ज है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को पूरा करने के लिए बिलावल भुट्टो के हाथ मजबूत करें। कॉन्फ्रेंस से चौधरी लतीफ़ अकबर, पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी, चौधरी परवेज अशरफ, अजहर बड़ालवी, डॉक्टर लालचंद, उमर मेमन, नसरुल्लाह मुगल, डॉक्टर गफूर अजीज, साहिबजादा जुल्फ़िकार, शाहीन कौसर डार, अंजुम जलाल, समिया अली, अशरफ चुगताई, अबरार मीर और एस्तर दास, आरिफ मुगल ने भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को उनकी सालगिरह पर खराज अकीदत पेश किया। इस मौका पर अपने पैगामात में मोहतरमा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो पहली मुसलमान खातून वज़ीर आज़म थी जिन्होंने न सिर्फ दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाया बल्कि पाकिस्तानी खवातीन को हुकूक देने की बुनियाद भी रखी। आज आपकी बीबी की सालगिरह है तो यकीन माने कि गो तो वो हमें मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे यही लगता है कि वो हमारे साथ है। कभी वो मुझे बिलावल की आंखों में नजर आती है, कभी जब जरदारी साहब तो आम के हुकूक की बात करते हैं वजूस में नजर आती हैं, कभी वो बीबी आसफा में नजर आती हैं, कभी बीबी बख्तावर में नजर आती हैं और कभी रियाज आकुल साहिबा की सूरत में नजर आती है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सलीम मांडवीवाला, डिप्टी चेयरमैन सेनेट चौधरी लतीफ़ अकबर, सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी परवेज, नदीम असगर कायरा, साहिबजादा जुल्फ़िकार, शाहीन कौसर डार, MP सिंध लालचंद अकरानी, अजहर इकबाल बड़ालवी, सैयद आरिफ मुगल एडवोकेट, अंजुम जलाल शरीफ चुगताई और दीगर ने ऑनलाइन शिरकत की। गुलाम हुसैन आवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 67वीं सालगिरह का एहतमाम ईस्ट लंदन में किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी बरतानिया के तमाम ओहदेदारान के साथ जियाले भी कसीर तादाद में शरीक हुए। पाकिस्तान और दुनिया भर से पीपल्स पार्टी के अहम ओहदेदारान भी सालगिरह की तकरीब में ऑनलाइन शरीक हुए। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 67वीं सालगिरह की तकरीब का एहतमाम ईस्ट लंदन में किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के तमाम ओहदेदारों के साथ साथ जियालों ने भी भरपूर शिरकत की। न सिर्फ मकामी जाले और रहनुमा शरीक हुए बल्कि दुनिया भर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम शख्सियात भी ऑनलाइन तकरीब का हिस्सा बनी और शहीद मोहतरमा को खराज अकीदत पेश किया।
गोले गोले मारीदा सी हाणे को न छॾंदा सी गोले गोले मारीदा सी बदलो वठंदा सी तेजा दुश्मन न गोले गोले मारीदा सी। सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया मोहसिन बारी ने कहा कि जमहूरियत के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दुख्तरे मशरक थी जिन्हें आयरन लेडी का भी खिताब दिया गया। हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। इस मौके की मुनासिबत से मैं ये कहूँगा कि मोहतरमा ने इस मुल्क के लिए जान का नजराना दिया, इस मुल्क की आवाम की बात की, या इस मुल्क की किसान और हारी की बात की, और उसके साथ साथ मोहतरमा पाकिस्तान की एक सिंबल थी, पहली आयरन लेडी थी। दीगर मुकर्रीन ने इस मौके पर शहीद बीबी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हुए इनकी कौमी और सियासी खिदमात का तज़किरा किया। तमाम दुनिया को, पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ भी हमारे पाकिस्तानी वास्ते हैं, सबको सालगिरह मुबारक कहता हूँ। और जमहूरियत के लिए जो बीबी शहीद ने जान दिया वो पाकिस्तान के लिए और जमहूरियत के लिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस पर नाज करती है। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, बीबी शहीद और तमाम पार्टी जमहूरियत के लिए, और पूरी दुनिया में अगर किसी भी दुनिया ने तरक्की की, जमहूरियत ने की है। कारकुनों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी रवायात और खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जमात है और आमरीत के खिलाफ हमेशा सीना तान कर खड़ी रही है। आज हम अपनी अजीम कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब की 67 बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं यूके के अंदर, और यहाँ पर यूके के तमाम जियाले मौजूद हैं। और आज हम जूम के ज़रिए दुनिया भर में जितने भी जियाले मौजूद थे उन सब के साथ हम कनेक्ट हुए इस अहद के साथ कि इंशाअल्लाह हम भुट्टोइज़्म पे हमेशा कायम रहेंगे। आज के दिन की मुनासबत से हम यही कहेंगे कि गरीब की बेनज़ीर, किसान की बेनज़ीर, हारी की बेनज़ीर, वो आवाम के दिलों में ज़िंदा थे, ज़िंदा थी, ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी इंशाअल्लाह। लॉकडाउन के बावजूद भी सालगिरह मना रहे हैं, तो एक शहीद बीबी, एक दिलेर खातून, बहादुर, इन्होंने अपनी जान जमहूरियत के लिए कुर्बान की और पाकिस्तान के लिए। इंशाअल्लाह 100, 200 साल, 300 साल ये बेनज़ीर की सालगिरह से मनाएंगे, और लोग जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं और हर घर में जो पाकिस्तानी उधर बैठे हैं वो बेनज़ीर को हर वक्त उनके सीने में है। हम इस मौके पर ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए और पाकिस्तान के गरीबों के लिए जदोजहद करने वाली हमारी लीडर जिसको शहीद कर दिया गया पाकिस्तान में, उनके विजन को हम आगे बढ़ाते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के शाना बशाना खड़े होंगे। शुरका का कहना था कि मोहतरमा ने इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। उन्होंने हमेशा गरीब और हारी की बात की और गरीबों के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। तकरीब में कारकुनों ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हर हाल में साथ देने का अज़म भी ज़ाहिर किया। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, ईस्ट लंदन, यूके। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 67वीं यौम पैदाइश के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्लिन ने मकामी होटल में सालगिरह की तकरीब सजाई, जिसमें पीपल्स पार्टी के जियाले ओहदेदार बड़ी तादाद में शरीक हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं असगर मिर्जा। बर्लिन में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद में होने वाली तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्लिन के सीनियर कारकुनों ने भी शिरकत की। बर्लिन तंजीम के सदर मलिक मंजूर अवान ने तकरीब की सदारत की, जबकि निजामत के फ़राइज़ जनरल सेक्रेटरी बर्लिन मियां कमल लतीफ़ ने अदा किए। उनका कहना था कि बीबी शहीद इस्लामी ममालिक और पाकिस्तान की पहली मुंतखब वज़ीर आज़म और वसी सियासी बसीरत की मालिक थीं। शुरका ने भुट्टो ख़ानदान की सियासी और मिली खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए शहीद बेनज़ीर भुट्टो को इस्लामी अकीदत पेश किया। मुकर्रीन का कहना था कि बीबी ने अपने सियासी विजन से पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया। भुट्टो खानदान की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। पीपल्स पार्टी ने आमरीत और आमराना रवैये की हमेशा मुखालफत की है। तकरीब के आखिर में शहीद बीबी की सालगिरह का केक काटा गया। इस मौके पर फिजा नारों से गूंज उठी। जिंदा है बीबी, जिंदा है, सारे सूबों की जंजीर। तकरीब में साबक PRO जर्मनी सैयद मुजाहिद हुसैन शाह, साबक सदर बर्लिन मलिक अयूब अवान, सीनियर कारकुन फारूक शाह, शेख तारिक, इब्रार अहमद, मुनीर बेग और दीगर ओहदेदारों और कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर कारकुनों ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भरपूर साथ देने का अज़म भी ज़ाहिर किया। तकरीब में कोविड-19 से बचाव के हिफाजती इक़दामात को भरपूर अंदाज में मलहूज़ खातर रखा गया। आखिर में कारकुनों की पुरतकल्लुफ़ तवाज़ो की गई। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, बर्लिन, जर्मनी। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने लंदन के नवाही इलाके रेडिंग में दहशत गर्दी के वाक़े की पुरजोर मजम्मत की है। फॉरबरी गार्डन में पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर रेडिंग
OPWC ریڈنگ اور بین المذاہب تنظیموں کے عہدیداروں نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تقریب کا اہتمام کیا. تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی رپورٹ میں. ریڈنگ میں گزشتہ روز ہونے والے دہشت گردی کے واقعے نے علاقے کی فضا کو سوگوار کر دیا. واقعے میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے. جائے وقوع پر مرنے والوں کی یاد میں تقریب کا اہتمام کیا گیا جس کے منتظمین میاں محمد سلیم، چیئرمین OPWC نعیم نقشبندی، ڈاکٹر اعجاز الہی اور راجہ اصغر تھے. منتظمین کی خصوصی دعوت پر MP میٹروڈا، بزنس سیکرٹری آف اسٹیٹ MP الوک شرما، تھیمس ویلی پولیس کمشنر اینتھونی اسٹینسفورڈ، میئر آف ریڈنگ ڈیوڈ سٹونز، کونسلر شاہد یونس، کونسلر دلپال سنگھ، کونسلر ناڈا، OPWC کے امجد تارڑ سمیت کمیونٹی کے دیگر رہنماؤں نے شرکت کی اور مرنے والوں کے خاندانوں سے اظہار یکجہتی کیا. اس موقع پر تقریب کے شرکاء اور کمیونٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اس دہشت گردی کے واقعے کا اجتماعی طور پر کمیونٹی کو شدید دکھ اور دلی صدمہ پہنچا ہے. شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ اجتماعی معاشرے کے مجرم ہوتے ہیں. Happy incident in Forbury Park. The police arrested the man very quickly after we left the park, and the incident came to an end. Obviously, ongoing inquiries into the background behind all of this. This is a very sad day for all of us here in Reading, and it's incredibly important that we remember the victims and that we think of their loved ones as they grieve. And an act of terror is designed to divide us as a community, and we mustn't allow it to do so. And it's really important as we move forward that we remain steadfast and unified as a community here in Reading, that we don't allow ourselves to be forced into the politics of division. بین المذاہب تنظیموں کے عہدیداروں نے ہلاک ہونے والوں کی فیملی سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور جائے وقوع پر گلدستے رکھے. اس موقع پر لوکل پولیس اور انٹرنیشنل الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے نمائندوں نے بھی بھرپور شرکت کی. غلام حسین امان، بیورو چیف 92 نیوز UK. کورونا لاک ڈاؤن میں نرمی کی خوشی میں برمنگھم کے معروف سولسٹر سید تصور نقوی کے گھر میں باربیکیو پارٹی کا انعقاد کیا گیا جس میں شعر و شاعری کی محفل بھی سجائی گئی. مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ میں. 3 ماہ کے بعد برطانوی حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا ہوا، لوگوں کی عید ہو گئی. اسی خوشی میں برمنگھم کے معروف سولسٹر سید تصور نقوی نے اپنے گارڈن میں ایک باربیکیو پارٹی کا اہتمام کیا جس میں پروفیشنلز، ورکرز اور دیگر دوست احباب کو مدعو کیا گیا تھا. حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے مختلف اوقات میں 10 افراد کو پارٹی میں مدعو کیا گیا. اس موقع پر معروف ادیب رانا عشرت نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں رباعی سنا کر خوب محفل جمائی. کم ظرف کون ہے، علی ہے کون، منکر ہے کون، موالی ہے کون. مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، چہرے بتا دیں گے حلالی ہے کون. سولسٹر سید تصور نقوی، علی محسن ہاشمی، طاہر امین، رانا عشرت اور دیگر نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران ہم ایک دوسرے سے نہیں مل پائے، اب اتنے عرصے بعد ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی ہے. دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھے. دعوت پہ گھر تشریف لائے. لاک ڈاؤن کے بعد ایک عرصے کے بعد ہمیں مل بیٹھنے کا موقع ملا. 3 مہینے کی دوری اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ یہ 3 سالوں کی یا 3 صدیوں پر محیط ہے. اللہ کرے کہ یہ کرونا کی وبا اس سے جان چھوٹے اور پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے. حکومت نے ابھی گارڈن پارٹی کی پرمیشن دی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پورا رمضان کا مہینہ عید ہو گئی. ہمارے مسلمان جو UK میں رہتے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ بہت دیر سے، چند مہینے ہو گئے تھے، 3-4 مہینے سے ہم نے اپنے کمیونٹی کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن نہیں رہا. تو بس یہ جیسی حکومت نے اعلان کیا ہے تو ہم نے اس بات کو ویلکم کا، اس ڈیسیجن کو، اور لاک ڈاؤن کے ریلیکس ہوتے ہی جو ہے وہ گارڈن پارٹیز کا اہتمام ہے. اور اس وقت ہم برمنگھم کے ممتاز لائر تصور نقوی صاحب کے گھر پہ ہیں، ان کی خاص دعوت پہ. دوستوں کا ایک جگہ پہ جمع ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہے. تو الحمدللہ ہر بندہ خاص پہ ساتھ بہت خوش و خرم ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. کافی دوست یہ اعتراض کر رہے تھے کہ یار اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ہم ایک دوسرے کی شکلیں بھول گئے ہیں، تو ہمیں گیٹ ٹوگیدر ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں ہم اکٹھے ہوئے ان کے گھر اور سارے دوست انجوائے کر رہے ہیں. جتنے بھی دوست ہیں یہاں پہ نقوی صاحب کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں،
تاکہ یہ تھوڑا سا جو گورنمنٹ کی طرف سے لاک ڈاؤن ریلیکس ہوا ہے تو تاکہ مل جل کے اتنے دنوں کے بعد سب جو ہے نا مل کے ایک مطلب ملاقات ہو جائے اور ایک پارٹی کی پارٹی ہو جائے. باربیکیو پارٹی اور ان کی مہربانی کہ انہوں نے گورنمنٹ کے اعلان کو خیر مقدم کیا اور ہمیں انوائٹ کیا اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. حیدر سردار زمانے دا، حیدر سردار زمانے دا، اے دنیا انی کوئی نہیں، وچ نور دے خاک ملا دیونا، اے دانش مندی کوئی نہیں، کوئی ہم سے رہی تے سامنے آ، میرا ویر پابندی کوئی نہیں، اسی تائیں پیر علی نو منیا، اے دے بعد تے بلندی کوئی نہیں. برطانیہ میں حکومتی گائیڈ لائن کے مطابق گارڈن پارٹی ہو سکتی ہے لیکن کوئی بڑا پروگرام نہیں. گارڈن پارٹی میں بھی 10 سے زائد افراد کو شرکت کی اجازت نہیں ہے. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. سعودی عرب میں آب زمزم کی فراہمی روک دی گئی. آب زمزم فراہم کرنے والے ادارے کے مطابق مکہ مکرمہ سمیت دیگر علاقوں میں آب زمزم کی سپلائی تا حکم ثانی بند رہے گی. کنگ عبداللہ منصوبہ برائے فراہمی آب زمزم نے ملک بھر میں آب زمزم کی فراہمی روکنے کی ہدایت جاری کی ہے. ادارے کے مطابق صحت کے حوالے سے کام کرنے والے اداروں کی ہدایات ملنے تک مکہ مکرمہ سمیت دیگر شہروں میں بھی آب زمزم سپلائی کرنے والے مقامات بند ہوں گے. یہ فیصلہ کرونا وائرس کے پیش نظر شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کے لیے کیا گیا ہے، جس پر ابھی تک عمل جاری ہے. ادارے نے کہا ہے کہ جن رہائشیوں کو زمزم کی ضرورت ہے وہ مقامی بڑی مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ بلیٹن میں شامل اہم خبریں آپ جان چکے ہیں. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.